Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I welcome you all in online support program. I am your computer lecturer Musharraf Naseem and I am from Army Public School and Colleges Askari 14 Rawalpindi campus. I hope you all are doing well. So students, this is your lesson number 2 and lecture number 7. We are going to go through the textbook page number 36 up till page number 39 and we are going through the topic programming environment. And the objective of today's lesson is that you all are going to understand popular high level languages and language translators and what are the popular programming languages, and we are going to discuss the language translator, which are compiler and interpreter. So students, first of all, we are going to go through the topic, that is programming environment. What is the programming environment? Programming environment is the set of processes and programming tools used to develop computer programs. In the past, programmers used various standalone programming tools for developing computer programs. These include editors, compilers, linkers, debugger, etc. Using separate programs provide a difficult and time-consuming environment for creating computer programs. Today, programmers use integrated development environment for developing computer programs. Integrated development environment is an application package that consists of editors, compilers, linkers, and debuggers with a graphical user interface. So basically, programming environment क्या चीज़ है? एक ऐसा environment जहाँ पे यूज़र जो है वो अपना काम कर सकता है, जहाँ पे प्रोग्रामर कोड लिखता है, उसको एडिट करता है, उसको डीबग करता है, उसके अंदर से जो है अपने लॉजिक सेट करता है, और ये सारे काम जो है जिस एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर रहते हुए वो करता है, वो इसका प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है. तो इनिशियल बेसिस के ऊपर जो है वो सबसे पहले उसमें एडिटर्स यूज़ होते थे. कुछ लोग जो है वो नोटपैड को, MS वर्ड को, इस तरह की चीज़ों को जो है एज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्रिएट यूज़ कर रहे होते थे. तो उसके अंदर फिर कंपाइलर्स भी आ जाते थे, लिंकर भी आते थे, डिबगर्स जो हैं वो भी आ जाते थे. ठीक है. तो यूजिंग सेपरेट प्रोग्राम्स प्रोवाइड अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एनवायरनमेंट. इससे होता क्या था कि फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड पर लिख रही हूँ, उसके बाद कंपाइलर जो है, कंपाइलर अलग से इंस्टॉल किया हुआ है, वो नोटपैड से कंपाइलर को शिफ्ट कर रही हूँ, कंपाइलर के बाद मैं लिंकर को शिफ्ट कर रही हूँ, लिंकर के बाद डिबगर को शिफ्ट कर रही हूँ. तो इसमें एक तो मुझे बहुत ज़्यादा सारे जो है वो प्रोग्राम इंस्टॉल करने पड़ते थे अपने एक कोड को रन करने के लिए. दूसरा ये कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एनवायरनमेंट हो जाता था. आजकल क्या हो रहा है, लेटेस्ट अपडेटेड जो हमारे पास IDEs आ रहे हैं. IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ये क्या है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर एक कंबाइंड पैकेज में अवेलेबल होती हैं. फॉर एग्जांपल आप उसी जगह के ऊपर अपना कोड लिखोगे, उसी जगह पे उसको कंपाइल करोगे, उसी जगह पे वो लिंक हो जाएगा, उसी जगह पे वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है जी. तो जो कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज है उसके अंदर एडिटर भी होगा, कंपाइलर, लिंकर एंड डिबगर, ये सारी चीज़ें. इसके साथ साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि उसके अंदर जो है कलर्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और जो है यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी होगा, जिसकी वजह से आप इजीली काम कर सकते हो. तो IDE बेसिकली क्या है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है. प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे, कंपाइल करोगे, लिंक करोगे, डीबग करोगे. ठीक है, क्लियर? So what is the integrated development environment? Most of the new programming languages use integrated development environment, IDE, to create, compile and run programs. IDE is computer software that brings all the processors and tools required for program development into one place. IDE's aim is to make the life of programmers easier by grouping together all the tasks needed for building applications into one environment. Today's modern IDEs have user-friendly graphical user interface. ठीक है जी. ये सारी चीज़ें जो हैं ऑल टुगेदर एक पैकेज में अवेलेबल होंगी, जो कि प्रोग्रामर्स के लिए काफ़ी आसानी, काफ़ी ईज़ जो है वो पैदा करेंगी. और इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी अच्छा यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम लोग GUI भी कहते हैं, वो भी अवेलेबल होगा, जिससे काम करना जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा. क्लियर? सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ C लैंग्वेज. क्योंकि हम लोग C लैंग्वेज जो है वो अपने कोर्स में गो थ्रू करेंगे, तो हमें C लैंग्वेज के बारे में जो है वो डिटेल्स पता होनी चाहिए. तो C लैंग्वेज जो है वो IDE को ही यूज़ करेगा एज अ कंपाइलर और एज अ लैंग्वेज राइटिंग, आपके कोड की राइटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए
लिंकिंग के लिए और डिबगिंग के लिए। तो ठीक है, अ सी लैंग्वेज आईडी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स, इसके अंदर जो मॉड्यूल्स होंगे वो टोटल कितने होंगे, दीज आर टोटल 5। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है। उसके बाद कंपाइलर आ जाएगा जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद जो है वो लिंकर आ जाएगा जिसने उसकी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ उसको लिंक करना है, एंड देन लोडर उसको मेमोरी में लोड करेगा, एंड देन वी हैव डिबगर इन केस कि उसके अंदर कोई एरर आता है तो वो उसको फाइंड करेगा, डिटेक्ट करेगा और उसके बाद रिमूव करेगा। ठीक है जी। So the very first one is the text editor. As you can see on your screens, the picture of the IDE environment have been shown to you. That is the environment of dev C++ software. What is text editor? A text editor is a simple word processor that is used to create and edit source code of a program as shown in the figure. ठीक है, ये ऐसा environment है जहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो। टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। इसके अलावा फाइल्स क्रिएटेड बाय अ टेक्स्ट एडिटर आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट फाइल्स की तरह से ही सेव होंगी। मोस्ट ऑफ द एडिटर्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट कंपाइल एरर्स टू सिंप्लीफाई रिमूविंग दैम। ठीक है, कि इन केस के अगर आपके कोड के अंदर कोई इशू होता है, कोई एरर आता है, तो कुछ कंपाइलर्स या कुछ टेक्स्ट एडिटर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि जो प्रोग्रामर्स हैं वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोग्रामर्स इजीली उसको डिटेक्ट कर सकें और उसको फिक्स कर सकें। ठीक है जी। So a compiler is a computer software that translates C language program, source program into machine code. What is machine code? That is object program that can be understood by and executed by the computer as shown in the figure. As you can see the picture that is mentioned in your slide. It also detects syntax error in the source program and gives hints to the programmer to correct them. अगर आपके पास जो है आपका टेक्स्ट एडिटर जो है वो लेटेस्ट है तो उसके अंदर जो है कुछ एडिटर्स ऐसे अवेलेबल होंगे जो कि आपके सिंटैक्स एरर को हाईलाइट कर देंगे ताकि प्रोग्रामर्स उसमें से इजीली इसको डिटेक्ट करके करेक्ट कर लें। अ कंपाइलर विल ओनली क्रिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इफ ऑल द सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम हैव बीन करेक्टेड if they exist. A program written in C language has the extension .c, for example first.c, and after compilation the object program extension will be .obj, for example first.obj. So compiler क्या चीज़ है, compiler क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, और उसके बाद जो भी आपकी लैंग्वेज होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी जीरोज और वंस की फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा उसने बताया कि कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर ने सिंटैक्स एरर जो है वो डिटेक्ट करके देने हैं कि कौन कौन सी लाइन के ऊपर कौन से सिंटैक्स एरर हैं, तो प्रोग्रामर उनको रिमूव करेगा, करेक्ट करेगा। जब तक उसके एरर्स जो हैं वो करेक्ट नहीं होंगे तब तक जो है आपका हाई लेवल कोड जो है वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, और सी प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं तो सी लैंग्वेज की जो एक्सटेंशन सेव होती है जब हम लोग उसको राइट करते हैं तो वो .c के एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, और जब उसकी कंपाइलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाती है और उसके एंड के ऊपर एक्सटेंशन .obj की लग जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे first.obj. So after compiler we are having linker. Linker is a software that translates object program into a single executable program. During this process, if it could not find the definition of a particular function that is used in the program, then it would assume that it is defined in C library. It will replace the function in the object program with the code from C library and then creates a single executable program. तो लिंकर क्या चीज़ है, लिंकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना है एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अंदर, और इस प्रोसेस के अंदर अगर उसको कोई डेफिनेशन नहीं मिलती है किसी पर्टिकुलर फंक्शन की। लिंकर में बेसिकली होता क्या है कि कुछ हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जिनको उसने अपने कोड से उठा के जो है वो लाइब्रेरी के साथ लिंक करना होता है। तो इन केस आपके प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन जो है उसको कॉल किया हुआ है तो फिर आपका लिंकर जो है उस फंक्शन को लिंक कर देगा लाइब्रेरी कोड के साथ, और अगर नहीं है तो फिर वो उसको स्किप कर देगा। It will replace the function in the object program with the code from C library and then create a single executable program. ठीक है, फिर उससे क्या होगा कि वो वहाँ से उसको एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर
आपके फंक्शन के अंदर कोई दूसरा कोड है जो कि लाइब्रेरी कोड के साथ लिंक होना है, तो वो उन सारे प्रोसेसेस को ऑल टुगेदर कंबाइन करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है हमारे पास लोडर। लोडर क्या चीज़ है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूट्स देम। ठीक है, इसका काम सिंपल क्या है कि इसने प्रोग्राम को लोड करना है मेमोरी में से और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवा देना है। उसके बाद है डीबगर। डीबगर जो है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, examines the value stored in variable and helps in finding removing errors in the program। ठीक है जी, इसने क्या करना है? डीबगर का काम यह है कि इसने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है और उसमें से जो है वो एग्जामिन करनी है उसकी वैल्यूज़ को। अगर उसके अंदर कोई एरर आता है या कोई प्रॉब्लम उसको जो है वो नज़र आती है तो उसको फाइंड करना है, एज वेल उसको रिमूव करना है। फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डीबगिंग। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स टू द प्रोग्रामिंग बेसिक्स। व्हाट आर द प्रोग्रामिंग बेसिक? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले। तो हम लोग जो किसी लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि होते क्या हैं। तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स में सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो कि हमारी सी लैंग्वेज है, उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो बनाने के काम आती है और बहुत सारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो भी सारे के सारे सी लैंग्वेज में बने हुए हैं। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? उसके अंदर उसके सबसे पहले कैरेक्टर सेट आ जाएगा। द सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट इंक्लूड, सबसे पहले उसमें आ जाएंगे लेटर्स, कि हम लोगों ने करने क्या है, हमारे जो लेटर्स होंगे वो कौन से होंगे। सी लैंग्वेज कंप्राइजेज द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स फॉर टू फॉर्म अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम। दे आर A to Z कैपिटल लेटर्स, A to Z इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, आप उसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। इन सी प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर्स एंड कैप्स आर डिस्टिंक्ट। इसमें ये चीज़ आपने बहुत ध्यान में रखनी है कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई वेरिएबल या किसी वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपने उस वर्ड को या उस कीवर्ड को जब दोबारा यूज़ करना है, जिस भी जगह पे यूज़ करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कैपिटल लेटर में ही लिखो। और अगर आपने किसी लेटर को स्मॉल लेटर में लिखा है या किसी वेरिएबल को स्मॉल लेटर में मेंशन किया है तो इसका मतलब ये है कि आप उस वेरिएबल को जब भी जितनी दफ़ा भी यूज़ करोगे आपने उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि ALI मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है और बाद में उसको मैं कॉल करती हूँ स्मॉल लेटर के साथ, यानी कि स्मॉल लेटर्स के अंदर ALI, तो वो दोनों वेरी करेंगे, वो सेम वेरिएबल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर जो है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है स्मॉल लेटर एंड कैप्स आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है एक दूसरे से। दोनों का मतलब क्या होगा? डिफरेंट होगा। After letters, we are having digits. C language comprises the following sequence of numbers to associate the letters. 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स जो हैं वो सारे आ जाएंगे और इनके कॉम्बिनेशन जो है वो जितने भी हैं वो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेशल कैरेक्टर्स। सी लैंग्वेज कंटेन्स द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन एसोसिएशन विद द लेटर एंड डिजिट्स। ये पूरा का पूरा टेबल जो है यहाँ पे मैंने पिक्चर में मेंशन कर दिया है। आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, गो थ्रू करें, इसको जूम इन करके इसकी पिक्चर जो है वो आप लोग देख लें। और ये जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं और उनके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी मीनिंग्स हैं ये आपको सबको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक टिल्ड का साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क साइन है, हैश नंबर साइन है, डॉलर साइन है, परसेंटेज साइन है, कैरेट है, एम्परसेंट है, स्टारिक है, ठीक है, लेफ़्ट ब्रेसेस हैं, राइट ब्रेसेस हैं। और इसके बाद ये जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं, इन सारे सिंबल्स का कोई ना कोई सी लैंग्वेज के अंदर मतलब है और ये किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने इन सारे सिंबल्स को एज इट इज़ जो हैं वो याद करना है, इनके क्रॉसपॉन्डिंग मीनिंग जो है वो याद करने हैं। इनके सिंबल्स जो हैं वो आपको MCQs में आ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि फ़लाँ सिंबल का मतलब क्या है, उसको एक्सप्लेन करें, इसका मीनिंग बताएं। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स जितने भी हैं ये आपने यहाँ पे अच्छे से याद करने हैं। Next, we are having reserved words. The words that are part of programming language and have special purpose in computer programs are called reserved words और keywords. ठीक है, reserved words और keywords क्या हैं? कुछ ऐसे restricted words हैं जो कि आप लोग जो है special purpose के लिए ही यूज़ कर सकते हो और reserved words को आप किसी तरह से भी किसी variable का नाम नहीं दे सकते। They have predefined use and cannot be used for any other purpose. Reserved words are always written in lowercase. They are
32 वर्ड्स डिफाइंड एज रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज। उनको 32 वर्ड्स जितने भी हैं उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो रिजर्व वर्ड्स क्या हैं, ये प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटो की बात कर रही हूँ तो ऑटो का कोई ना कोई मकसद जो है वो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है। तो ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं ये कौन कौन से हैं, ऑटो, ब्रेक, केस, चार, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, ई नम, एक्सटर्न, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, signed, size of, static, struct, switch, type, def, union, unsigned, void, volatile, while। ये सारे के सारे क्या हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं और ये 32 हैं इन काउंट। और इन सब का कोई ना कोई प्री डिफाइंड जो है कोई मकसद है, ये स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, बनाए गए हैं और इनको हम लोग किसी दूसरे मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद आती हैं हमारे पास हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या चीज़ें होती हैं, सी लैंग्वेज कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस इन लाइब्रेरी फाइल्स दैट परफॉर्म्स various tasks in C program. These tasks include all the input-output operations and all the math operations. Library file contains header files and each header file contains a set of functions. Some commonly used header files are stdio.h, conio.h and math.h. ठीक है जी। हेडर फाइल्स क्या हैं कि हेडर फाइल्स जो हैं कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कि लाइब्रेरी फाइल के अंदर ऑलरेडी बना के रख दी गई हैं। इन फाइल का मकसद ये है कि जो कि प्रोग्रामर्स को हेल्प आउट करना, ताकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं वो इजीली स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट हो सकें। अगर आपकी जो है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई भी फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। इसके अलावा आपकी जो टेक्निकल जैसे कि मैथ्स के फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, लॉग हो गया, साइन, कॉस, टैन, इस तरह की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। तो उनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ करने से पहले आपको कोई ना कोई हेडर फाइल जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स से रिलेटेड फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं अपने कोड के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, math.h की हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। सम कॉमनली यूज्ड फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन stdio.h। stdio.h अगर आप हेडर फाइल यूज़ करते हो तो उस फाइल को यूज़ करने का मकसद ये है कि आप printf फंक्शन और scanf फंक्शन, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है फंक्शन है, जिस भी वर्ड के बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग नज़र आएगी, इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या चीज़ है या फंक्शन है। तो printf एंड scanf जो है ये इसके फंक्शंस हैं। उसके बाद सम ऑफ द फंक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन conio.h फाइल आर क्लियर स्क्रीन, गेट ch एंड गेट che। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई क्लियर स्क्रीन करना चाहते हो या कैरेक्टर को गेट करना चाहते हो, कैरेक्टर को गेट करके को करवाना चाहते हो तो आप conio.h की फ़ाइल यूज़ करोगे। उसके बाद है math.h फाइल जो है वो मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए होगी, सच एज स्क्वायर रूट, पावर, लॉग, साइन, कॉस एंड टैन। इस तरह के फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए या यूज़ करने के लिए आपको math.h की हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। So in order to use a library function, the programmer must include appropriate header file at the beginning of the program as shown in the figure. When source program is translated into executable file, a copy of code of function is pasted in the source program by the linker from the header file before creating the executable file. ठीक है जी, क्लियर है। ये सारे हैं आपके प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। आई होप कि सबको समझ में आगे होंगे। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी। So that's all from today's lecture, and the assignment for you is there are 3 questions. The question number 1 is what do you know about programming basics, and question number 2 is enlist 20 special characters. कौन कौन से हैं उनमें से आपने 20 को enlist करना है। Question number 3 is what are reserve words, explain and enlist some important reserve words. आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।